वेलकम टू एमडीएम क्लासेस। वी आर ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो 2। उसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रेड साइकिल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक छोटा सा इंट्रो है कि अभी थोड़ा फॉर्मेट चेंज है। पहले क्या होगा, पहले हम थ्योरी रीड करेंगे, कॉन्सेप्ट रीड करेंगे सारे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम पॉइंटर्स से उसको पूरे को रिवाइज करेंगे। तो जब हम थ्योरी रीड करेंगे और जब हम पॉइंटर्स को रिवाइज करेंगे तो आपको मुझे देख नहीं पाएंगे, लेकिन जब मैं थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा तब आप मुझे देख पाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको पहले थ्योरी मेरे साथ एक बार देखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन को सुनना है, फिर आपको पॉइंटर्स को एक बार देखना है और फिर आप पूरी वीडियो एक बार और देखनी है एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स। ओके, लेट्स गो। हेलो, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी विल रीड द थ्योरी वंस। मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन मैंने ऑडियो स्टार्ट करना भूल गया था। सो वेलकम टू एमडीएम क्लासेस, वेलकम टू ट्रेड साइकिल चैप्टर 3। विल रीड द थ्योरी वंस, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम इन पॉइंटर्स के साथ रिवीजन करेंगे। ओके, now business cycle refers to fluctuations in economic activities such as production, investment, consumption, employment, income, prices, profits, etc. Every country is subject to economic fluctuations. Some of these fluctuations are very short in duration, while some other fluctuations sustain for many years. If a country is experiencing any business prosperity or hardship, the country will definitely experience favorable or unfavorable economic situations. Thus, a trade cycle or business cycle can be referred to as the study of oscillating economic activities of the nation, which are inevitable part of the economic development. As the name suggests, the trade cycle is nothing but an upward or downward movement of economic activities in a cyclical way caused by the dynamic forces in the economy. Types of trade cycles: secular trends, short-term cycles, seasonal variations, cyclical fluctuations, random or irregular variations. Out of these various types of variations in economic activities, economists are very much attracted to cyclical fluctuations as they create considerable disaster or disorder in the economic activities and national income and hence the entire functioning of the economy. Characteristics or features of trade cycle. Trade cycles occurs periodically. Trade cycle is all embracing, that is, it is synchronic, wave-like movement in economic activities. Trade cycles are generally similar but not identical. The process of trade cycle is cumulative and self-reinforcing. The concept of trade cycle is a complex phenomenon. The presence of different phases. There are different types of trade cycles and trade cycles are very asymmetric. Now, changes or causes of trade cycles. Changes in demand. Change in demand is very important in directing the upward and downward movement in the economy. British economist J.M. Keynes emphasized that in an economy, when demand increases, the producer starts producing more goods and services in order to meet the increased demand. It will lead to higher employment, income, consumption, output, profit, etc., which will ultimately lead to boom in the economy. Fiscal policies. Fiscal policies are the policies framed and implemented by the government of a country on its revenue and expenditure. Any cut in tax rates or increase in public expenditure helps in increasing money supply in the economy. Monetary policies. Any change in the monetary policy by the central bank can bring changes in the economic activities. For example, if the monetary policies are looking forward to expand the economic activities by reducing the interest rates so that the investment can be promoted, then the economy may lead to the path of prosperity. Now, supply of money. An increase in money supply in the market will cause a growth and expansion in an economy. However, too much money supply in economy may cause inflation, which has adverse impact on the functioning of the economy. On the other hand, any decrease in the supply of money will cause a recession in the economy. Wars. Economic resources are diverted during war times to produce war related weapons or goods like weapons, arms, and other such war materials. As the focus shifts from the customer products and capital goods to war supporting material, it will lead to fall in the income, employment, and other economic activities. Innovation and modernization of technology. Innovative and modernized technologies always bring a prosperity to the economy. With the introduction of new technology, there will be new investments, more production, more employment, and as a result, there will be higher level of income and profits in the economy. Natural factors. Natural disasters like occurrences of floods, droughts, tsunami, hurricanes, etc. cause damage to the agricultural sector, and as a consequence, there will be severe losses to the agricultural sector. Scarcity of food will lead to price rise of the essential food items, and consequently there will be high inflation. Population explosion. When growth rate of population is higher than the economic growth, the total savings of the investment will start falling. Subsequently, the investment in the economy will be declined as well, and a slowdown will start in the economy, and consequently it will lead to depression. A trade cycle has four distinct phases, that is, which they are as below: recovery and expansion, second peak or boom, third recession or contraction, and fourth depression. Recovery or expansion. During this period, the entrepreneurs are getting positive sentiments about the market. Peak or boom. The level of production increases, the economy gets its momentum during this boom period. Resources available are almost employed, and the economy enters a stage of full employment. Recession or contraction. Recession is the turning point during which the forces that make expansion have to
that make expansion have to lose to the forces of contraction. All the economic variables start declining gradually as a pessimistic wave is spreading into the economy. Profit margins gradually begins to fall or ultimately disappear as there is almost end to the boom conditions. Depression, the whole economy during depression follows a pessimistic environment as the businesses are at the lowest ebb. The economic variables, 2 minute. Recession is the turning point during which the forces that make expansion have to lose to the forces of contraction. All the economic variables start declining gradually as the pessimistic wave is spreading into the economy. Profit margin gradually begins to fall and ultimately disappear as there is almost an end to the boom conditions. Now, depression. The whole economy during depression follows a pessimistic environment as the businesses are at the lowest ebb. All the economic variables such as production, employment, investment, consumption, saving, etc. are at the lowest prices. Prices of goods and services reach a considerably very low. Keynes presented a systematic analysis of factors that cause business cycles. In this theory of trade cycles, Keynes mentioned that the level of employment, output or income is determined by the aggregate effective demand in short run. According to Keynes, any fluctuation in the economic activity is basically at the fluctuation in investment demand. Since investment demand is extremely unstable, it brings about trade cycles in the economic activities. In an economy, when there is a fall in marginal efficiency of capital, the level of investment automatically decreases. During the expansion phase, there is a rise in income, which in turn leads to rise in the demand for money and interest rates. Higher interest rates increases the cost of borrowings and hence some projects becomes unprofitable. In such situations, investments start falling in the economy. Fall in marginal efficiency of capital and rise in interest rate cause decline in the investment demand in an economy. Monetary measures to control trade cycles: bank credit policy, open market operations, variable reserve ratio. Selective credit control measures: the central bank of the country, for the purpose of selective credit control, generally uses the following types of regulations from time to time: securing loan regulations by fixation of margin regulations, margin requirements, consumer credit regulations, issue of directives, rationing of credit, moral caution and publicity, direct actions. Fiscal measures to control a trade cycle. Taxation policy: a rise in the tax means there is less disposable income with the community and vice versa. Thus, the government can use tax rates as a measure to control monetary supply in an economy. Public expenditure: higher public expenditure helps in increasing the money supply in an economy, and a low level of public spending reduces the volume of money supply in an economy. If the economy is facing depressionary or recessionary situation, the government should increase its expenditure on public work programs such as construction of new roads, bridges, canals, etc. Public debt: during inflationary situation, usually government mops up surplus or extra money that through attractive borrowing schemes. On the other hand, during recession, government borrowing fiscal deficit can boost a sluggish economy by giving more money to the people who can spend and invest them. Anti-cyclical budgeting: the budgetary policies of the government should be framed in such a way that it can fight instability in the economic variables created by the trade cycles. Automatic stabilizers or built-in stabilizers: though both the central bank and the government always try to stabilize the economy by adopting monetary policies and fiscal policies, they cannot be geared quickly to set right the instability. Just to avoid the economy getting worse, the policy makers keep some kinds of provisions for auto adjustments, that is built-in stabilizers in the economy's fiscal structure. Okay, we've read this. Now we'll understand this and then we'll revise the pointers. Pointers कहाँ हैं हमारे? जल्दी ये है हमारे पॉइंटर्स, हमको इनसे रिवीजन करना है, फाइनल रिवीजन इनसे करना है। ओके डन, थैंक यू, बाय बाय। सो हम चैप्टर 3 के रिवीजन को देख रहे थे, हमने उसकी थ्योरी को रीड कर लिया है, अभी हम उसके सारे कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। ओके जस्ट अ मिनट। सो हम थे बिजनेस ट्रेड साइकिल्स को समझ रहे थे। ट्रेड साइकिल्स क्या होती है, उसके लिए हमें बिजनेस साइकिल को समझना पड़ेगा। बिजनेस साइकिल क्या होती है? कोई भी फ्लक्चुएशन होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एक इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन में, इन्वेस्टमेंट में, कंजम्पशन में, एम्प्लॉयमेंट में, प्राइसेस में, उसे एक बिजनेस साइकिल कहा जाता है। बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक साइकिल्स में चलती है, सीजनल, हम कई सारे देखते हैं। फॉर किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के एग्जाम्पल से देखते हैं। बिजनेस साइकिल फॉर एग्जाम्पल एक रेनकोट का भी सीजन चल रहा है, वो सीजनल नेचर की एक साइकिल है। उसमें कभी एक पीक होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। वो पीक सीजन में ज़्यादा होता है, शुरुआत में शुरू में ज़्यादा रहता है, फिर बीच में स्टेबलाइज हो जाता है, फिर जब एंड होने वाला होता है तो कम हो जाती है उसकी सेल्स। तो एक बिजनेस साइकिल है जिसमें एक पैटर्न होता है, एक मूवमेंट होता है प्रोडक्शन में, इन्वेस्टमेंट में, कंजम्पशन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में, उसे कहते हैं बिजनेस साइकिल। हर एक कंट्री में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होते हैं और ये फ्लक्चुएशन शॉर्ट ड्यूरेशन के भी होते हैं और कुछ फ्लक्चुएशंस बड़े लॉन्ग पीरियड के भी होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन बहुत होते ही हैं, दे टेक पार्ट इन एवरी इकोनॉमी। कोई कंट्री जो एक्सपीरियंस कर रही है बिजनेस प्रोपेंसिटी और हार्डशिप, अगर उसको हार्डशिप हो रही है तो वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेगी फेवरेबल और अनफेवरेबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। अगर कोई बिजनेस है
जिसमें प्रॉब्लम जा रही है, तो फिर उसकी इकोनॉमी का उस पर ज़रूर इम्पैक्ट है, या तो वो फेवरेबल है या एडवर्स है, और उसने उसको किस तरह से डील करा है उसके हिसाब से उसकी करंट सिचुएशन होने वाली है। ठीक है, जस्ट जो ट्रेड साइकिल होती है, इट इज रेफर टू अ स्टडी ऑफ ऑसिलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। जो ट्रेड साइकिल है उसे एक स्टडी ऑफ ऑसिलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको ट्रेड साइकिल्स को समझना ही पड़ेगा, आपको नेचर ऑफ बिजनेस इन द इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, ताकि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सको अपनी इकोनॉमी का, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो ट्रेड साइकिल है वो क्या होती है, बट नथिंग बट एन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ साइकिलिकल वे कॉज्ड बाय द डायनेमिक फोर्सेज ऑफ इन द इकोनॉमी। ट्रेड साइकिल क्या होती है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो भी साइकिलिकल वे में होती रहती है, उसे कहते हैं ट्रेड साइकिल्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल क्या होती हैं, सेक्युलर ट्रेंड्स मतलब जनरल ट्रेंड्स जो होते रहते हैं। फिर शॉर्ट टर्म साइकिल्स, बहुत चीज़ें बहुत छोटे पीरियड के लिए होती हैं, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया जिसकी वजह से एक ट्रेड साइकिल ट्रिगर हो गई। ठीक है, बीच में एक 1992 बोल के एक वो आई थी हर्षद मेहता की, वो तो उससे इंडिया में इन्वेस्टिंग का ट्रेंड बढ़ गया था। फिर बीच में क्रिप्टो करेंसी की बात आई थी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था इंडिया में, लेकिन फिर लॉस होने लगे तो फिर कम हो गया था। ठीक है, फिर सीजनल वेरिएशन जैसा हमने देखा रेनकोट का एग्जांपल, सीजन में बिकता है नहीं, कूलर्स सीजन में बिकते हैं उसके बाद नहीं बिकते हैं। फिर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस मींस जो ट्रेड साइकिल है वो अलग अलग ट्रेंड से गुजरती है, अलग अलग फेजेस से गुजरती है, और उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, और वो बड़े क्या कहना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होते हैं। फिर रैंडम और इरेगुलर वेरिएशंस, कुछ चीज़ें होती हैं जो इरेगुलर होती हैं, रैंडम होती हैं, जिनका कोई रीज़न नहीं होता। कई बार जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टेबल क्या था, अडानी स्कैम नहीं कहना चाहिए, अडानी का जो अभी रिपोर्ट आया था उसके बाद जो अडानी के शेयर्स ड्रॉप हुए, तो वो एक तरीके से प्रेडिक्टेबल था। लेकिन कई चीज़ें हो जाती हैं, जैसे बिजनेसेस पूरी तरह सहारा एकदम से डाउन हो गया था, तो प्रेडिक्टेबल नहीं था, इरेगुलर चीज़ें होती रहती हैं बिजनेस में, और उसकी वजह से जो ट्रेड साइकिल पे इम्पैक्ट आता है उसे कहते हैं इरेगुलर वेरिएशंस। अब ये जो बहुत सारे टाइप्स के वेरिएशंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक्स आर वेरी मच अट्रैक्टेड इन साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हमने देखा उसमें इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है किसी भी इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स, वो पीरियोडिकल होते हैं, मतलब होते रहते हैं, ऑल एम्ब्रेसिंग रहते हैं, मतलब सारी चीज़ों को इंक्लूड करके रहते हैं, सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आता है ट्रेड साइकिल में। वेव लाइक मूवमेंट रहता है इसमें, वेव लाइक कभी ऊपर होती है इकोनॉमी, कभी नीचे होती है, कभी थोड़ी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है, इस तरह ट्रेड साइकिल चलती रहती है। अभी ट्रेड साइकिल्स है जनरली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। ये जो होती हैं ये सिमिलर होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती, क्योंकि हमेशा टाइम सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ तो अलग चल ही रहा होता है हर वक्त। ना प्रोसेस ऑफ ट्रेड साइकिल इज क्यूमुलेटिव एंड सेल्फ इन्फोर्सिंग। एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है और सेल्फ इन्फोर्सिंग है, अपने आप में चेंज होती रहती है, अपने आप से किसी और दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होती। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड साइकिल इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है ना, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने सारे फैक्टर्स को प्ले इन करके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन रही है, जो ट्रेड साइकिल बन रही है, वो कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फेजेस, उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, अपन ने देखा। जैसे अभी हम देखने वाले 4 फेजेस होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल, टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स हम अभी देखेंगे। ट्रेड साइकिल्स आर असिमेट्रिक और असिमेट्रिकल होती हैं। ठीक है, अभी सिंपल ये तो हो गए कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स, ये आपको एग्जाम में लिखने काम आएंगे। इससे हमने सीखा क्या कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसके समझने के लिए हम अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं उसको समझने के लिए, ताकि हम उसे प्रेडिक्ट कर सकें इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जाएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। ओके, अब क्या क्या कॉजेज होते हैं ट्रेड साइकिल के? चेंज इन डिमांड, अगर डिमांड चेंज हो गई किसी भी इकोनॉमी में, डिमांड और सप्लाई आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर डिमांड चेंज हो गई तो लोगों का इन्वेस्टमेंट बदल जाएगा, लोगों का फाइनेंशियल पैटर्न बदल जाएगा, लोगों का कंजम्पशन बदल जाएगा, लोगों का सेविंग एपेटाइट चेंज हो जाएंगे, और अगर वो चेंज हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में खत्म हो जाएगा, और जब क्रेडिट क्रिएशन खत्म हो जाएगा इकोनॉमी में तो फिर पैसा नहीं बचेगा इकोनॉमी में। तो चेंज इन डिमांड की वजह से बेसिकली बहुत चेंज आता है ट्रेड साइकिल्स में। फिजिकल पॉलिसीज़ क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट अपने फिजिकल पॉलिसीज जैसे कि टैक्सेस और पब्लिक एक्सपेंडिचर में कितना पैसा डालना है, कितना टैक्स लेना है, उसमें चेंज करती है, उसे कहते हैं फिजिकल पॉलिसीज और फिजिकल पॉलिसी चेंजेस। इसकी वजह से ट्रेड साइकिल्स इन्फ्लुएंस होती हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है? सेंट्रल बैंकिंग, जैसे कि आरबीआई ने अपना कैश रिजर्व रेशो अपन ने बैंकिंग में देखा है, और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। कैश रिजर्व रेशो मतलब वो उतना परसेंटेज ऑफ द आपका रेवेन्यू जो आपको आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा, और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो मतलब उतना परसेंट ऑफ योर रेवेन्यू जितना आपको लोगों को लिक्विड देने के लिए, कैश विड्रॉ करने के लिए जितना आपको लोगों को देने के लिए रखना पड़ेगा। तो ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने इसे चेंज करा, तो इन मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आपकी ट्रेड साइकिल चेंज होती है, क्योंकि क्रेडिट जितना बैंक के पास रहता है वो कम हो जाता है। फिर सप्लाई ऑफ मनी क्या है? अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है इकोनॉमी में तो ग्रोथ और एक्सपांशन होता है, लेकिन साथ साथ इन्फ्लेशन भी होता है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है।
और अगर सप्लाई कम हो जाती है तो इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं रहता। तो दोनों ही सेम नहीं, दोनों में एक बैलेंस की जरूरत है, और दोनों और इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी में उसको ग्रोइंग रखने के लिए, ठीक है। फिर वॉर्स, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से सिर्फ वॉर की तरफ डायरेक्ट हो जाती हैं। आर्टिकल शायद 271 और 241 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कहता है कि इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी और वॉर आर्मी रूल लग जाएगा और बस सारे रिसोर्सेज, सारी एक्टिविटीज, एवरी मैन, एवरी हैंड एट द जॉब, एवरी हैंड ऑन द शिप विल बी टुवर्ड्स वन एंड वन गोल ओनली, दैट इज टू फाइट द एनिमी एंड विन द वॉर, ठीक है। सारी कोई प्रोग्रेस डेवलपमेंट पे फोकस नहीं, कोई किसी चीज़ पे फोकस नहीं, सिर्फ वॉर वॉर वॉर, ठीक है। इनोवेटिव एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जब अगर वॉर होगी तो अभी ट्रेड साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा, मीनिंग टू से इनोवेटिव एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से सिंपलर चीज़ें करके ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। अभी AI आ रहा है, ये आ रहा है, वो हो रहा है, तो जो एज ओल्ड चीज़ें हैं वो कम हो रही हैं, इसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रेड साइकिल के जो इफेक्ट्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। फिर नेचुरल फैक्टर्स ऑलवेज, अभी सुनामी आ गई थी हमारे वेस्ट में, सुनामी आ गई थी, गुजरात में भी एक साइक्लोन आ गया था, तो उसकी वजह से पूरी ट्रेड साइकिल, पूरा बिजनेस, पूरी इकोनॉमी इफेक्ट होती है। फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे जैसे ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का बढ़ता है, जब पॉपुलेशन का ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा बढ़ता है तो जो सेविंग होती है इन्वेस्टमेंट में वो कम होने लगती है और लोग कंज्यूम ज़्यादा करने लगते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कम रिसोर्सेज में आपको ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना पड़ता है, ठीक है। अब अभी हमने इसी पर देखा था कि इकोनॉमी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो क्या क्या टाइप्स होते हैं, जो ट्रेड साइकिल है उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। तो कौन कौन से फेजेस होते हैं? 4 फेजेस होते हैं, रिकवरी और एक्सपांशन, पीक और बूम, रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन एंड डिप्रेशन। सो पीक और एक्सपांशन, रिकवरी और एक्सपांशन क्या होता है? जब एंटरप्रेन्योर्स को जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर को मैं जानता हूँ, क्या नाम था उनका, गिरीश भंडागरे, तो उन्होंने कहा था कि अभी हमारी इकोनॉमी जो है रिकवरी एक्सपांशन में, अभी हम बहुत ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं अभी। मैं कहा जी सर आप सही कह रहे हैं। तो रिकवरी और एक्सपांशन, ड्यूरिंग दिस पीरियड एंटरप्रेन्योर्स आर गेटिंग पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अबाउट द मार्केट। फिर पीक और बूम, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड द इकोनॉमी गेट्स द मोमेंटम ड्यूरिंग दिस बूम पीरियड, रिसोर्सेज अवेलेबल आर ऑलमोस्ट एम्प्लॉयड एंड द इकोनॉमी एंटर्स अ स्टेज ऑफ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। सो रिकवरी में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स को एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मिल रहा है मार्केट के बारे में, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। पीक और बूम में क्या है कि इकोनॉमी ऊपर तक पहुंच चुकी है, यहाँ पे ओवर एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में। फिर रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाउन होने लगेंगी, सारे जो आपके जैसे पहले ऑप्टिमिस्टिक वेव था अभी पेसिमिस्टिक वेव हो जाएगा, सब डिमोटिवेट होंगे, पैसा नहीं रहेगा, कोई रिस्क नहीं लेना जाएगा क्योंकि सब लोग पैसे सेव करना चाहेंगे, इकोनॉमी में रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे होंगे। फिर डिप्रेशन, मतलब इकोनॉमी पूरी तरह से डाउन हो जाए, अपने लोएस्ट एब को टच कर चुकी है। जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, सेविंग, वो सब अपने लोएस्ट लेवल पे हैं और जो प्राइजेस हैं वो और लो लेवल पे हैं। जब प्राइजेस कम हो जाती है ना, हम सोचते हैं प्राइजेस कम होना अच्छा है, जब प्राइजेस कम हो जाती है तो बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पाते, और जब बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पाते तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करती, ठीक है। ये हो गया डिप्रेशन। तो ये हो गया 4 फेज। उसके बाद अपन ने केनीज की थ्योरी देखी है जिसमें उसने एक सिस्टमेटिक एनालिसिस बताया अपने को, जेएम केनीज ने, कि जो ट्रेड साइकिल्स हैं वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम जो रहती है वो किससे डिटरमिन होती है? बाय द इफेक्टिव डिमांड इन द शॉर्ट टर्म, उससे इफेक्ट होती है। उसने बोला कि कोई भी इकोनॉमी है जिसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, द एक्टिविटीज बेसिकली द फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट डिमांड, सिंस इन्वेस्टमेंट डिमांड इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल है। इट ब्रिंग्स अबाउट, अपने पता है, हाँ, इसमें एक वर्ड आएगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जब गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली गिरेगा, और जब एक्सपांशन फेज रहेगा तो प्राइसेस, इनकम बढ़ेंगी, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग भी बढ़ेगा। जब कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ेगा तो जितने प्रोजेक्ट्स रहेंगे जिन्होंने लोन लेके अपना काम कर रहे होंगे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। सो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फॉलिंग इन द इकोनॉमी। फॉल इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड राइज इन इंटरेस्ट रेट कॉज डिक्लाइन इन द इन्वेस्टमेंट डिमांड इन एन इकोनॉमी। ओके, अब इसमें कुछ मेजर्स होते हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करने के, जैसे कि मॉनिटरी मेजर टू कंट्रोल ट्रेड साइकिल। कौन कौन से होते हैं? बैंक रेट की पॉलिसी हमने देखा, आरबीआई कैसे कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो को चेंज कर दिया। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस कर देता है, पैसा पंप करके और पैसा कॉन्ट्रैक्ट करके। फिर वेरिएबल रिजर्व रेशियो, बहुत सारे अलग अलग रिजर्व रेशियोज रहते हैं, जैसे कि बैंक्स के इंटर बैंक रिजर्व्स होते हैं, अलग अलग परसेंटेज रहते हैं कि आपको इतना पैसा इस फंड में, यूडा फंड में, इस फंड में, यूआईडीआई फंड में, पोस्ट ऑफिस के बैंक अकाउंट को इतना फंड मिनिमम रखना ही रखना है। उससे आप मॉनिटरी मेजर्स होते हैं जिससे ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करा जाता है। फिर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से रहते हैं? जो अपना सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई ऑफ द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जनरली यूजेस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेगुलेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि सिक्योरिंग लोन रेगुलेशंस बाय फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट
regulations, issue of directives, rationing of credit, moral succession and publicity and direct action. Direct action मेरे को पता है, securing loan regulation और precision of margin requirements. जो margin requirement है किसी भी लोन के लिए, जो इंटरेस्ट रेट है उसको गवर्नमेंट और दी सेंट्रल बैंक उसको रेगुलेट कर देता है. फिर कस्टमर कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कंज्यूमर को आप कितना क्रेडिट दोगे, किस लेवल के कंज्यूमर को आप कितना क्रेडिट दोगे ताकि आपके एनपीएस कंट्रोल में रहे, वो रेगुलेट करता है. इशू ऑफ डायरेक्टिव्स आपको किस तरीके से एक्ट करना है, आपको किस तरीके से लोन देना है, और अगर कुछ भी डायरेक्टिव से तो आप खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आपको पेनलाइज करा जाएगा. रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सर्कुलेशन, पब्लिसिटी करता है आरबीआई इन चीज़ों की. अच्छी पॉलिसी जो वो प्रमोट करना चाहते हैं उनकी पब्लिसिटी करता है, उनका मोरल कॉशन बढ़ाता है. और फिर डायरेक्ट एक्शन, सेंट्रल बैंक भी सारी चीज़ें करता है बैंक की, वो लोन देता है गवर्नमेंट को, वो सब कुछ करता है. वो दूसरे बैंक जो डूब रहे होते हैं उनका मैनेजमेंट चेंज करता है, वो सब कुछ करता है. तो ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स हो गए. उसके बाद फिजिकल पॉलिसीज, फिजिकल मेजर्स टू कंट्रोल इकोनॉमी. कौन कौन से मेजर्स हैं किसी भी ट्रेड साइकिल को कंट्रोल करने के? सबसे पहले टैक्सेशन पॉलिसी, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर. टैक्सेशन पॉलिसी हमने देखा, पब्लिक एक्सपेंडिचर हम देख चुके हैं. पब्लिक डेट क्या होता है? जब भी सिचुएशन में इंडिया में 2014 के बाद से अभी तक हम 200 टाइम्स डेट बढ़ा चुके हैं हमारी कंट्री की. क्यों? क्योंकि हम इन्फ्लेशन चाहते हैं. हम चाहते हैं कि इकोनॉमी बूम करे, हमारे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ ब्रिज बने, हमारे यहाँ हाईवे बने, लेकिन उसके लिए पैसा लगता है और पैसा गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेके हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, इन द होप कि जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तो इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी, और जब वो ग्रो करेगी तो हम इस लोन को रीपे कर पाएंगे. फिर एंटी साइक्लिकल बजटिंग क्या होती है कि जो साइक्लिकल ट्रेड साइकिल है उससे जो इल इफेक्ट हुए, जो उसकी वजह से जो इफेक्ट्स हुए. फॉर एग्जांपल कभी साइकिल अपनी ट्रेड साइकिल चल रही है जिसकी वजह से कोई एक चीज़ हुई, जिस चीज़ की वजह से इकोनॉमी डाउन चली गई है, तो आप बजट ऐसा बनाओ जिसकी वजह से इकोनॉमी ऊपर चली जाए. और अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत ऊपर जा चुकी है, फिर आपको जैसा करो ताकि वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे जाना दोनों सही नहीं है. फिर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स और बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स. जो सेंट्रल बैंक है और गवर्नमेंट वो दोनों ही ट्राई करते हैं कि वो इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बनाएं ताकि जो इनस्टेबिलिटी हुई है, या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम इफेक्ट इकोनॉमी में हुआ है, उसको स्टेबलाइज कर सके, उसको एक नॉर्मल लेवल पे ला सके और एक कंसिस्टेंट ग्रेजुअल ग्रोथ को रखा जा सके, प्रमोट किया जा सके. ओके, दैट इज इट फॉर आवर चैप्टर. बाय बाय. Hello. So we are on the pointers. This is the last part of our chapter. We are going to revise these pointers. We are going to read this. आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है. चैप्टर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2 ट्रेड साइकिल्स की अपन बात कर रहे हैं. ट्रेड साइकिल्स की अपन बात कर रहे हैं. अपन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल देख चुके हैं. ट्रेड साइकिल जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स और क्यूमुलेटिव फैक्टर्स उसे कहते हैं ट्रेड साइकिल. टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल क्या होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म साइकिल्स होते हैं, फिर सेक्युलर ट्रेंड्स होते हैं, फिर सीजनल वेरिएशंस होते हैं, रैंडम और इरेगुलर फ्लक्चुएशंस होते हैं. और ये जो है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, इनको सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आता है इस इकोनॉमी में. अब ये डेफिनेशंस बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है ट्रेड साइकिल्स की. ये सारे लोग हैं जो फावले हैं जिन्होंने हमें डेफिनेशन बहुत सारी दी हुई है. पर इससे हम क्या कर सकते हैं? हम किसी एक की डेफिनेशन को उठा लेते हैं. जैसे कि अपने को इन भाई साहब ने अपने को क्या डेफिनेशन दी है? टिनबर्ग भाई साहब ने, इन भाई साहब ने अपने को डेफिनेशन दी है दैट अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड of periods of good trade characterized by rising prices and low unemployment percentage, altering with periods of bad trade and characterized by falling prices and high unemployment percentages. इसका मीनिंग क्या हुआ?
इसका मीनिंग ये हुआ कि इन्होंने जो डेफिनेशन दी है ट्रेड साइकिल की, ये बड़ी ही पॉजिटिव सी इन्होंने डेफिनेशन दी है। इसी तरह अलग अलग इंसान अपनी अलग अलग डेफिनेशंस देता है, अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दे के रखता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके लिए हमने एक डेफिनेशन देख ली यहाँ पे कि ये इनके हिसाब से ट्रेड साइकिल है। इन्होंने बहुत पॉजिटिव, इन्होंने बोला ट्रेड साइकिल वो है जब अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, प्राइजेस फॉलिंग, प्राइजेस कम हो रही होती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहता है, प्राइजेस फॉल करती रहती हैं। ये एक बड़ी एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रेड साइकिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत अलग अलग लोग हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग टाइप के और अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं। हम सिर्फ अभी एक को देख लेते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हम क्यों देख रहे हैं समझिए, एग्जाम पॉइंट, लास्ट मिनट आपको लिखना क्या है वो पता रहना चाहिए। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स, ये पीरियोडिकल होती हैं, ये पीरियोडिकल होती हैं, दे ऑकर पीरियोडिकली, दे आर ऑल एम्ब्रेसिंग, सिंक्रोनिक होती हैं, सब चीज़ को इंक्लूड कर लेती हैं, वेव लाइक मूवमेंट होती है इसमें, दे आर सिमिलर एंड नॉट आइडेंटिकल, दे आर क्यूमुलेटिव एंड सेल्फ एनफोर्सिंग, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनॉन, उनमें बहुत सारे अलग अलग फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स, माइनर ट्रेड साइकिल और मेजर ट्रेड साइकिल, जिससे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है किसी भी बिजनेस को, बिजनेस इकोनॉमी को बहुत कम इफेक्ट करते हैं, उसे माइनर ट्रेड साइकिल कहते हैं। और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होती रहती है और जिससे बहुत मेजर इंपैक्ट आते हैं इकोनॉमी पे, उसे कहते हैं मेजर ट्रेड साइकिल्स। फिर वो असिमेट्रिक होती हैं। फिर कॉज ऑफ ट्रेड साइकिल्स, जो इंटरनल कॉजेज हैं ट्रेड साइकिल के, वो क्या कहते हैं? डिमांड अगर चेंज हो गया, अगर आपका डिमांड चेंज हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया, चेंजेस इन डिमांड हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होने लगी आपकी, अगर मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंज हुए, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? आरबीआई करता है। फिजिकल पॉलिसी कौन करता है? मोदी जी करते हैं, गवर्नमेंट कर दी है। सप्लाई ऑफ मनी में अगर चेंज हुए तो। देन एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ ट्रेड साइकिल, वो कौन कौन से हैं? वॉर्स, इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नेचुरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन एक्सपोजन एक्सेट्रा। फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, रिकवरी और एक्सपांशन, पीक और बूम, रिकवरी और रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन, एंड ट्रफ और डिप्रेशन। अब केनीज थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में उसने क्या बोला? AC इज इक्वल टू C+D। इसमें वो क्या कह रहा है, किसी भी इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल को प्रेडिक्ट करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज AD इज इक्वल टू C, मतलब जितना हाउस होल्ड सेक्टर, जितने लोग खर्चा करते हैं उसे कहा उसने C, और I क्या होता है? जितने एंटरप्रेन्योर्स खर्चा करते हैं उसे कहा उसने इन्वेस्टमेंट। उसने क्लियरली ये बात बोली कि जब भी किसी भी इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल को आपको जज करना है तो लोगों का कंजम्पशन किसी भी इकोनॉमी में सेम रहता है, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की वजह से वो सारा कंजम्पशन हो रहा होता है। जितनी वो चेंज होगी उतना ही आपका डिमांड चेंज होगा। उसने ये सिंपली कहा कि जैसे ही, फॉर एग्जाम्पल उसने उठाया एक एक्सपांशनरी फेज को, मतलब जब इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बूम कर रही है, उस केस में उसने कहा कि जब एक्सपांशन हो रहा होगा तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ेगी तो कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो जब मार्जिनल कॉस्ट में राइज होगा तो उसकी वजह से कैपिटल गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी। जब कैपिटल गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो लेवल ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा तो इकोनॉमी वैसे ही डाउन आने वाली है। दूसरा उसने पॉइंट बोला कि जब एक्सपांशन भी चल रहा होगा इकोनॉमी, जब बहुत पैसा आ रहा होगा, कंटिन्यूसली लोग काम कर रहे होंगे, उस सिचुएशन में भी जब इनकम बढ़ेगी, तो जब इनकम बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक को देने में दिक्कत आएगी, तो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाएगा लोन देने के लिए, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी। जब बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई भी प्रोजेक्ट अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा। जब वो अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डाउन होना चालू हो जाएगी। मतलब वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इकोनॉमी डाउन होने लगती है, और जो कैपिटल है, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेड साइकिल को समझने के लिए और इकोनॉमी को ग्रोइंग रखने के लिए, उसको समझना, उससे डील करना कितना जरूरी है। तो उसने ये बात अपने को बोली कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है और जो इंटरेस्ट रेट है, वो जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड इकोनॉमी में कम होती है। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट कम होती है तो स्टॉक की प्राइसेस कम हो जाती हैं। जब स्टॉक की प्राइसेस कम हो जाती है तो लोगों के पास जो वेल्थ रहती है वो कम हो जाती है, और जब लोगों के पास वेल्थ कम हो जाती है तो वो कंज्यूम कम करते हैं, क्योंकि बस खर्चा करने के लिए पैसे कम बचते हैं, तो उनका कंजम्पशन कम हो जाता है। और जैसे कंजम्पशन लेस होता है, एग्रीगेट डिमांड लेस हो जाती है, और जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो इकोनॉमी डिप्रेशन में जाने लगती है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होने लगता है धीरे धीरे। सो जो मार्जिनल एफिशिएंसी है तो एक पेसिमिस्टिक बिजनेस में आप चले जाते हो। पेसिमिस्टिक बिजनेस तब होता है जब फर्दर फॉल होने लगता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में, जैसे एंटर इनटू फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और इकोनॉमी एक्सपांशन से कॉन्ट्रैक्शन फेज में घुस जाती है जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाती है। और जब ऐसा, तो फिर उसने बेसिकली क्या बोला कि जो वेजेस हैं और प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंश्योर नहीं कर सकते कि आप डिप्रेशन से कोई भी इकोनॉमी डिप्रेशन से निकल पाएगा या नहीं। जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है
उससे उठना पड़ेगा अगर आपको किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करना है। तो जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन से कॉन्ट्रैक्शन में लेके जाने के लिए, और फिर जब वो इकोनॉमी डिप्रेशन में जा चुकी है तो उसको वापस रिकवरी में लाने के लिए जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, किस रेट पे आपको कैपिटल मिलता है और वो किस तरीके से यूज हो रहा है, वो इम्पैक्ट करेगा, वो जरूरी रहेगा डिटरमिन करने के लिए किस तरीके से आपकी इकोनॉमी परफॉर्म करेगी। ओके, ये थोड़ा डिटेल था पर ये जरूरी था। नाउ कंट्रोल ऑफ ट्रेड साइकिल, मॉनेटरी मेजर्स कौन कौन से हैं? बैंक अपना रेट चेंज कर सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन चेंज कर सकते हैं, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विड कैश रिजर्व रेशो, कितना पैसा बैंक कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेगा, कितना पैसा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेगा, कितना परसेंटेज एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट SLR, और कितना वो बैंक अपने खुद के पास रखेगा, अपने खुद के पास रखेगा ताकि लोगों को लिक्विड एसेट दिए जा सके। उसके बाद सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कितना करेगा। फिर फिस्कल मेजर्स कौन कौन से हैं? टैक्सेशन गवर्नमेंट करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग को रेगुलेट करती है, पब्लिक बोरोविंग्स को रेगुलेट करती है, एंटी साइक्लिकल बजटिंग वो होती है बजटिंग जिसमें ट्रेड साइकिल के जो इल इफेक्ट्स हैं उन्हें रेगुलेट किया जाता है, उन्हें रेगुलेट किया जा सके, इस तरह से बजट बनाया जाता है। फिर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और बिल्ट इन स्टेबलाइजर, किसी भी बजट में किसी भी इकोनॉमी में जो अपना सेंट्रल बैंक है और गवर्नमेंट से उनका बेसिक काम ही ये होता है कि जो ट्रेड साइकिल के इल इफेक्ट हैं उसे स्टेबलाइज करें और जो भी एकदम से पीक या रिसेशन आ गया है इकोनॉमी में उसे कंट्रोल करें, और उस बजट को और सारी पॉलिसीज को बनाए इस तरह जाता है कि वो स्टेबलाइज कर सके इकोनॉमी को एज अ होल। सो वी आर डन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।